कॉलेज ड्रॉप आउट हूं तो क्या हुआ, हर बिजनेस में नंबर 1 बनूंगा। छोटी सोच और पाँव की मौज इंसान को दूर जाने नहीं देती। मीडिया, सोलर एनर्जी, पोर्ट, कोयल, सीमेंट, कोई भी तरह का बिजनेस हो, नंबर 1 अब एयरपोर्ट में भी बनूंगा। वैसे तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करना चाहता हूँ। आज बात करेंगे गौतम अडानी की। कहते हैं बिजनेस के जिस सेक्टर का ज्ञान ना हो उस सेक्टर में कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपने नए सेक्टर में आकर भी नंबर 1 खिलाड़ी बने। आजकल के नए मीडिया ट्रेंडिंग स्टार और विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी अडानी ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर गौतम अडानी की आज बात करें। गौतम अडानी जो आज इंडिया के लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर हैं, आखिर वो कैसे बने? यदि बात पहले की जाए तो आज से 10-20 साल पहले तक वो एविएशन सेक्टर में एंटर भी नहीं किए थे। अचानक से उनका मन कैसे बदल गया? आज वो 7 एयरपोर्ट के साथ 6 छोटे एयरपोर्ट और एक वर्ल्ड का नंबर 1 मुंबई एयरपोर्ट के साथ इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गए हैं। जिन 6 एयरपोर्टों में नाम होता है वो जयपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, इन 6 एयरपोर्टों के साथ और एक मुंबई एयरपोर्ट के साथ कैसे चले गए। 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी के हाथ में हाथ मलती रह गई। 56 कंपनियां साथ में। 2019 में सरकार ने शुरुआत की कि हम 6 एयरपोर्टों को प्राइवेटाइज करने की घोषणा कर रहे हैं। Maintenance, then MRO hub. The three are put together relating to civil aviation. The first is the airspace management. Just to give you a background, only about 60% of the Indian airspace is freely available, and that's because airspace is fairly restricted for its use for civil purposes and defense purposes. This means that all these years, all these decades, we have been flying to some most destinations not through the shortest route but slightly longer routes, which means you're having more time in the air. This actually has to be rationalized. Optimum utilization of airspace is best, because after all the fuel spent is also something which we import. Huge bill goes for that. Finally the customer ends up paying more price for the flying, and for pilots it's a extra hour of flying or half an hour of flying. Above all, if we are able to optimally utilize the airspace and reach quickly, every one of our time is saved, and therefore now rationalization is going to happen. We will be able to get to our destination at the shortest possible time, thus saving travel time, thus saving fuel, thus saving also the pilot's flying time. This is an environment-friendly step, but having very big implication on India's fuel importable and also for civil aviation, which in India has biggest potential in growth. Civil aviation is up for a big leap. So the airspace availability through which the flying time is influenced is going to be better. That is one. The second that I'd like to tell you about is 6 more airports are for auction, and the Airports Authority of India shall do it on public-private basis, PPP basis. Additional investments also are likely to happen by private players in about 12 airports which they are already holding for better world-class facilities to be brought in. So majorly airports in India will become far more with better facility and customer experience. This has financial implications to the extent not so much for the budget, but the AAI, the Airports Authority of India, will get a down payment of 2,300 crores, and also the first and second rounds of investments are expected to get 13,000 crores. So this is one step which will at a time increase better facilities and also make our airports a lot more worthy experience for the passengers. The third in this, because it's all pertain to civil aviation, is making India an MRO hub. This was mentioned also in the budget. Maintenance, repair and overhaul of aircrafts is a big business. Most of the Indian aircrafts themselves go abroad
to do their repair works, spend on parts there, and also come back for after the overall to India. But maintenance and repair and overall, India has all the capacities, manpower skills required, soft skills required, and also India can then be the center for many of the flights which go towards Southeast Asia, long distance to Australia, similarly westwards also. If we make sure that MRO's ecosystem is created in India, for which the tax regime has already been altered so that it favors setting up MRO in India, this is a major step that we want to make sure that India benefits from. And in this, not just civil aircrafts, but also defense aircrafts can also be benefiting from the MRO, which if we make India as a huge hub. Maintenance cost for all airlines will come down, and that again will have a ripple effect on the passengers. The travelers can probably pay less after that. So these are three put together reforms for the civil aviation sector, जिनमें 57 कंपनी आगे आई बोली लगाने के लिए। अब बोली जब लगाई गई तो 56 कंपनियों को वन बाय वन अडानी ने साइड में कर दिया। वो कैसे बिडिंग लगाई गई, जिसमें बोली में प्राइवेटाइज में पहले क्या था कि हर कंपनी को रेवेन्यू पर शेयर देना पड़ता था। अब जब सरकार ने ये कह दिया कि भैया हमें कोई झंझट नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपकी पर पैसेंजर फी चाहिए। अब की बार जो बिडिंग लगाई गई वो पर पैसेंजर फी के हिसाब से लगाई गई। जब कंपनियों ने ये सब सुना तो पर पैसेंजर फी के कई 45 लगाए गए, 74 लगाए गए, किसी ने 74, 84, किसी ने अपने अपने हिसाब से लगाए। लेकिन अडानी जी ने पर बिडिंग भी डबल कर दी, हर एक बिडिंग एकदम डबल कर दी, जिससे कंपनियों का एक कंपनी, आपको बता दूं 6 एयरपोर्ट अडानी जी के हाथ में चले गए। Infrastructure, power, defense, and now airports. Gujarat-based conglomerate Adani Group has now won 5 airports, which marks its foray into the airport space, which was so far dominated by 2 players, GVK and GMR. The Airports Authority had invited bids to privatize 6 airports, out of which Adani has won 5. Company sources tell us these airports include Ahmedabad, Jaipur, Mangalore, Thiruvananthapuram, and Lucknow. Well, my colleague Alisha Sachdev has much more on this. Alisha, what are the details? Well, Amitoj, the big haul really, 5 airports, which really puts Adani, squarely in competition with the 2 big boys in the airport space, GVK and GMR. GMR, as you know, is the authority that handles the Delhi airport, and the Mumbai airport, on the other hand, is controlled by GVK. This time around, the government had significantly been pushing for privatizing some of its airports. 6 airports had been put to bid, 5 of which Adani has already won. The 6th airport is actually Guwahati, which has not been open for bidding yet, but it will come up for bidding tomorrow. Now, if company sources are to be believed, the bids that Adani actually put up were more than double of its competitors like GMR. Now, this is a big move because Adani Group is a conglomerate which has so far not been initiated into the in the airport space at all. But remember, there is a significant policy thrust in the aviation and airport sector, which is why it's no surprise, and also the clients of the airport service providers are actually the government, and that has pretty much been Adani Group's profile so far, and therefore it really fits into their business strategy that they are actually bidding so aggressively for these airports. What we also know is that once Adani actually takes control of these airports, they will be maintaining these airports for the next 50 years. So this is really a long-term project, again fitting into Adani Group's strategy, and it will serve them really well. And also, one significant thing to really mention is that the government had been trying to bring in new players which had not been initiated into the airport space, and it did so by making the bidding criteria only based on financials, which is really how much the airline bids in the per passenger fee. So that is what really Adani went for this time and actually clinched this 5 airport deal. एक चार्ट के अनुसार यदि माने तो जयपुर में 174 और लखनऊ में 171, अहमदाबाद में 173 और गुवाहाटी में आपके 160 रुपए पर पैसेंजर फी, मंगलुरु में 115 रुपए और जयपुर में मैंने पहले बता दिया 174 रुपए। जितनी बिडिंग वो कंपनियां लगाती वो उनसे डबल कर देते। अब भैया जाना तो सीधा अडानी जी के पास ही था सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट।
पहले जितने भी एयरपोर्ट गवर्नमेंट देती थी वो अगले 30 साल के लिए लीज पर देती थी, लेकिन इस साल अडानी जी को अगले 50 साल के लिए लीज पर दिया गया है, जिसे आप मान सकते हैं कि अगले 50 साल के लिए जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी कुछ किया जाएगा वो अडानी जी के ही द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं कि जब अडानी जी के पास 6 के 6 एयरपोर्ट थे तो उन्होंने 7वां एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट क्यों हवाला कर दिया, क्यों उन्होंने एक्वायर किया मुंबई एयरपोर्ट को, आखिर क्या नौबत आ पड़ी जबकि 6 एयरपोर्ट उनके पास थे। अब आपका सवाल लेते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग रहा कि मुंबई एयरपोर्ट अडानी जी के हाथ कैसे चला गया। 6 एयरपोर्ट तो समझ लिया कि सरकार ने बिडिंग लगाई थी और वो जीत गए, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट की तो कोई बिडिंग नहीं हुई, आखिर वो कैसे जीत गए। अगर अडानी ग्रुप उस ग्रुप को मुंबई एयरपोर्ट को यदि जीत भी गया तो कैसे जीत गया, बिना बिडिंग के कैसे जीत गया, आखिर उसमें ऐसी क्या शर्त हुई थी, क्या मामला था। शुरू से शुरू करते हैं। देखो, मुंबई एयरपोर्ट को यदि समझते हैं तो मुंबई एयरपोर्ट दुनिया का पूरे भारत की यदि बात करें तो 1/3 जनसंख्या सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, सबसे प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट है। अडानी जी एक बात जानते थे कि यदि एविएशन सेक्टर में हमें सफल होना है, यदि इसमें सक्सेस पानी है तो सबसे पहली बात यही है कि हमें प्रॉफिटेबल बनना होगा। यदि हम जिन 6 एयरपोर्टों की हमने बात की थी, इन 6 एयरपोर्टों में प्रॉफिटेबल आने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जो प्रॉफिटेबल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 साल में हो जाएगा, जबकि इन 6 एयरपोर्टों में प्रॉफिटेबल होने में आई थिंक 30, 40 या 20-30 साल तक भी लग सकते हैं। इसलिए मुंबई एयरपोर्ट को एक्वायर किया गया। अब बात करते हैं वो कहानी कि आप जानना चाहते हैं मुंबई एयरपोर्ट को कैसे एक्वायर कर लिया भैया बिना बिडिंग के। आपको बताते हैं कि इसके मालिक को कैसे एक्वायर किया गया। देखो, बात करते हैं मुंबई एयरपोर्ट के जो मालिक थे। मुंबई एयरपोर्ट के जो 100% शेयर में से चार तरीके से डिवाइडेड थे। देखो, 26% जो शेयर थे वो थे इंडियन गवर्नमेंट के पास, और जिसमें से 23.5% शेयर थे, एक थे साउथ अफ्रीका की कंपनी और दूसरी थी बिडगेस्ट कंपनी। तीसरी बात, जो अब बच्चे कितने शेयर, 50.5%, जो 50.5% जो शेयर थे वो जीवीके रेड्डी के पास थे। अब वो ही अपना काम दाम संभाल रहे थे, वो ही इस पर प्रॉफिट कमा रहे थे। अब जीवीके रेड्डी के पास क्या है कि उनको वो कर्ज दले दबे हुए थे, बैंक से कर्ज ले रखा था। उन्होंने अपने 25% शेयर तो बैंक में गिरवी रखे हुए थे कर्ज लेते समय। अब अडानी को ये बात मालूम चल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मुंबई एयरपोर्ट ही क्यों लिया, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट तो और भी तो बहुत है, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, ये भी तो बहुत है, यहाँ भी तो जनसंख्या बहुत आती है। आपको बात बताते हैं, ये एयरपोर्ट जितने भी ये इन पर कोई कर्ज नहीं है, जबकि जो मुंबई एयरपोर्ट था जीवीके रेड्डी के द्वारा जो चलाया जा रहा था उसमें वो कर्ज तले दबे हुए थे। अब अडानी जी ने सोचा कि इस एयरपोर्ट को कैसे भी करके एक्वायर करना है, क्योंकि 6 एयरपोर्ट उनके पास थे, 7वां जैसे ही वो एयरपोर्ट ले लेते तो एक तो एविएशन सेक्टर में नंबर 1 बन जाते, जिससे उनका कुछ अलग ही खिताब हो जाता। अब बात करें तो उन्होंने किस प्रकार वो एक्वायर किया। जीवीके रेड्डी अपनी जो कंपनी है उनको देना नहीं चाहते थे। उन्होंने जीवीके रेड्डी को मीटिंग के लिए बुलाया, कहा आ जाओ भैया हम मीटिंग करते हैं। जीवीके रेड्डी ने कहा कि मैं अपने शेयर में से 1 शेयर भी नहीं दूंगा। अब उन्होंने क्या कहा कि बड़ी मछली को खाने से पहले छोटी मछली को खाया जाता है। उन्होंने साउथ अफ्रीका और जो बिडगेस्ट कंपनी थी उन दोनों को बुलाया, 23.5% उनके शेयर थे, उनको बोला कि मैं तुम्हें 1-1 शेयर के डबल पैसे दूंगा, अभी कितने शेयर भाव चल रहे हैं उसके डबल पैसे ले लो। उन्होंने कहा ठीक है, हमें क्या मतलब है, शेयर तो जा ही रहे हैं, प्रॉफिट जीवीके रेड्डी कमा रहे हैं, अब हमारे शेयर इधर जाए या इधर जाए, क्या मतलब। अब भैया अडानी इस टाइम तक बन गए 23.5% शेयर के मालिक। अब 26% आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट के पास है, 50.5% है जीवीके रेड्डी के पास। इंडियन गवर्नमेंट से ले नहीं सकते, ये भारत सरकार के द्वारा है। जीवीके रेड्डी अपना शेयर है वो किसी को बेचना नहीं चाह रहे थे। अब अडानी को ये बात मालूम थी कि ये बंदा है जो कर्ज तले दबा हुआ है, तो इसको कैसे भी करके मनाना है, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट चाहिए था भैया, बहुत इंपॉर्टेंट था एविएशन सेक्टर के लिए। तो किया क्या गया कि दोनों जो साउथ अफ्रीका और बिडगेस्ट कंपनी थी उनकी मीटिंग बुलाई गई। तो दोनों ने कहा भाई हम तो ऐसे साइन नहीं कर सकते, बेचना चाहते हैं अपने शेयर 23.5% ले लो, लेकिन हम ऐसे दे नहीं सकते। क्या है कि जब भी देखो कोई भी जो बड़ी मछली होती है, बड़ी मछली मतलब जो बड़ा जिनके पास शेयर होता है पूरी कंपनी का, उनके और छोटे शेयरों के बीच एग्रीमेंट होता है कि छोटे शेयर जो ले रखे हैं 2%, 3% जो मालिक होते हैं,
उन जो बड़े शेयर वालों को बिना पूछे आप बेच नहीं सकते। तो जीवीके रेड्डी को उन्होंने बुलाया, पूछा, अडानी जी के तीनों को मीटिंग हुई। तो जीवीके रेड्डी जी ने कहा कि नहीं, हम तो भैया अपनी जो कंपनी के जो शेयर हैं वो किसी को नहीं देंगे, नहीं बेचेंगे। अडानी जी ने कहा ठीक है, मत बेचो। तो उस दिन इस प्रकार से मीटिंग है वो निरस्त होगी। फिर अडानी जी ने पता नहीं क्या हुआ, जीवीके रेड्डी के घर अगले ही दिन सीबीआई का छापा पड़ जाता है, रेड हुई उनके घर। एक गुमनाम लेटर उनके पहुंचता है, पता नहीं वो लेटर किसने भेजा, मैं किसी का यह नाम नहीं लेना चाहता। अब जैसे ही उन्होंने वो लेटर देखा, सीबीआई वाले आ गए, एक फाइल खुली, उनकी जांच हुई। जब इस रेड की खबर जीवीके रेड्डी को पड़ी तो उनको समझ आ गया कि क्या मामला है। उन्होंने अडानी जी को फोन मिलाया कि हम तो वैसे ही कर्ज तले दबे हुए हैं, ठीक है हम आपको शेयर दे देते हैं। और अगले ही दिन अडानी जी और उनकी जीवीके रेड्डी और साउथ अफ्रीका की जो कंपनी और बिडगेस्ट चारों कंपनियों की अडानी जी के साथ मीटिंग हुई। और इसी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पूरा का पूरा अडानी जी के हाथ में 74% स्टेक के साथ चला गया। और मिस्टर गौतम अडानी जी ने आज ये साबित कर दिया, सपनों के दायरे सोच को बताते हैं और आपकी संघर्ष के दायरे आपकी जीत को बताते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। एक बार फिर से मिस्टर गौतम अडानी को विश्व का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बनने पर बहुत बहुत बधाई। और आपके इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको विशेष धन्यवाद।